Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers, that is 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. But please do not forget to prefix 011, the code of Delhi, if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar, your host, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक पहुंचाएंगे। आज सोमवार है और आज हम कार्यक्रम में आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23314444, 23717106 और हमारा तीसरा नंबर है 23717117। और यदि आप दिल्ली से बाहर हमें फोन कर रहे हैं तो कृपया 011 लगाना ना भूलें। और श्रोताओं, सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। हरवीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वेलकम हरवीर जी। और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस के साथ में निश्चित। The headlines: domestic stocks plunge around 2%, Sensex closes below 57,200 points, Nifty settles below 17,200. The rupee weakens 9 paise against the US dollar. Global stocks witness losses and Brent crude prices hover around $112 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में आज 2% की गिरावट। सेंसेक्स नीचे आकर 57,200 अंक के नीचे बंद हुआ। निफ्टी भागकर 17,200 अंक के नीचे। डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे कमजोर रहा। वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट का रुख और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल पर पहुंची। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम शेयर बाजार से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में आज लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई। घरेलू शेयर बाजार में एशियाई बाजारों के नकारात्मक प्रभाव के कारण यह सुस्ती देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 57,200 अंक के स्तर के नीचे बंद हुआ और निफ्टी 17,200 के स्तर के नीचे रहा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 2.01% की गिरावट से यानी 1,172 अंक नीचे आकर 57,167 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.73% की कमी से 302 अंक नीचे आकर 17,174 पर पहुंच गया। The Sensex at the Bombay Stock Exchange today plunged around 2%. Domestic stock indices declined for the fourth session in a row amid weak cues from other Asian global share markets. The Bombay Stock Exchange Sensex closed below 57,200 points, while the Nifty at the National Stock Exchange ended below 17,200 levels. The Sensex lost 1,172 points, or 2.10% to finish at 57,167. The Nifty also tumbled 302 points, or 1.73% to settle at 17,174. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap fell 0.95%, while the small-cap index ended 1.01% down. In the Sensex pack, 10 companies logged gains, while 20 declined. NTPC was the top gainer as it added 6.1%, followed by Tata Steel, which gained 1.5%. Maruti climbed 1.4%, and Titan rose 1.2%. On the other hand, Infosys lost the most as it slipped 7.3% and HDFC declined 4.8%. HDFC Bank and Tech Mahindra both fell 4.7% each. Wipro slipped 3.7%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 5 indices climbed while 14 indices logged losses. Power index gained 2%, utilities rose 1.9% and FMCG ended 0.7% up. On the other side, IT index plunged 4.8% while the tech index declined 4.6%. Finance
tumbled 2.1%. Telecom declined 1.8% and BankX fell 1.7%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,393 companies gained while 2,133 fell. Shares of 144 companies remained unchanged. And we are joined in by our first caller from Delhi, Rajat. Rajat, welcome to the show. Hi sir, very good evening. Good evening, Rajat. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि अभी जैसे मार्केट का सेंटिमेंट आप देख रहे हैं नेगेटिव पे आता जा रहा है और जैसे यूएस यूक्रेन की वॉर हो गई, ये जो ऑयल प्राइसेस है वो इन्फ्लेशन डेटा है, तो सर अब कहीं वो लगता है जो बबल जो क्रिएट हुआ था पहले अब वो बर्स्ट होने के कगार पे है और यहाँ से हम कितना डाउन टेक देखते हैं। एक तो ये, और दूसरा जब इन्फ्लेशन रेट हमारा ऊपर की तरफ है तो क्या हम ये माने कि सरकार हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, जो बैंक इंटरेस्ट रेट है विच इज 6.5%, क्या वहाँ पे हमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है? तो ये दो क्वेश्चन है प्लीज। हरवीर जी, देखिए आपने जो क्वेश्चन किया मार्केट को लेकर, इस सेंटिमेंट जिस तरीके के हैं उनमें बहुत इमीडिएट तो बहुत पॉजिटिव हमें नहीं दिखता मार्केट में, क्योंकि एक तो चिंता सबसे बड़ी इन्फ्लेशन की है और वो हमारे यानी दुनिया भर में इस तरह का इन्फ्लेशन रहता है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए हैं, सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस हुए हैं, ऑयल प्राइस लगातार ऊपर गई है और उसके चलते इन्फ्लेशन का प्रेशर सब जगह, ये एनर्जी प्राइसेस की का बड़ा उसमें योगदान है। दूसरे कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए। ये बात ठीक है कि मार्केट में बहुत सारा एक लोगों का एक्सपेक्टेशन था और लगातार मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो बना रहा और डिस्पाइट एफपीआई का थोड़ा आउटफ्लो हुआ, लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो फ्लो है उसमें वो काफी मजबूत बना रहा है। इसलिए मार्केट हमारा बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस उस तरीके का नहीं है मार्केट में। बहुत ये बात सही है कि पिछले 4 सत्र है वोलेटाइल रहा है और अभी क्योंकि एक तो ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के जो इंडिकेशंस हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है उसको लेकर के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो कंपनीज के जो मार्केट्स जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे फैक्टर्स मार्केट का अभी जो गया है नीचे उसके पीछे ये काम कर रहे हैं। चाइना का इकोनॉमी को लेकर के थोड़ा कंसर्न है क्योंकि इनका जो ग्रोथ रेट है उसको काफी कट किया गया है एंड उसका एक इम्पैक्ट दुनिया भर में आता है। ये फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी हम मेरे ख्याल दिस नॉट अ बबल नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसमें लोगों ने पैसा लगाया है और बहुत सारी चीजें रही हैं फैक्टर्स उसके पीछे जो ग्रेजुअली मार्केट ऊपर गया है और इसमें कोई ऐसा सडन पुल आउट नहीं दिखेगा जो कि यूजुअली कई बार होता है कि बिकॉज देयर इज नॉट टू मच डिपेंडेंसी ऑन एफपीआई एंड एफआई। ये फैक्टर है। जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात आपने की, डेफिनेटली अब एक इंडिकेशन आ रहा है कि इसमें अपवर्ड ट्रेंड आएगा और अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो देश का सबसे बड़ा लेंडर है एफपीआई उसने एमसीएलआर रेट में थोड़ा चेंज किया है 10 बेसिस पॉइंट। हालांकि आरबीआई के पॉलिसी रेट का अभी इंतजार करना है क्योंकि बाकी जगह जो एक ट्रेंड इंडिकेशन जाएगा वो आरबीआई के पॉलिसी रेट्स के आधार पर जाता है, लेकिन फिर भी लगता है कि बैंक ये मान चुके हैं और ये क्योंकि इन्फ्लेशन के जो डाटा आया है आज भी वो थोड़ा सा ये है कि अब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट के ऊपर दबाव आ रहा है ऊपर की तरफ जाने के इंडिकेशन। हमारे अगले श्रोता है दिल्ली से विशाल। हेलो जी विशाल जी, आपका प्रश्न पूछिए। अब मेरा प्रश्न के 2 भाग है जी। तो पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक चीज है कि अगर मेरे स्टॉक्स में अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है मेरे को, तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये स्टॉक बेचने का सही समय है? जी देखिए, लेकिन की आवाज बहुत धीमे आ रही थी। तो मेरे ख्याल से इनका है कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है जिन लोगों ने और उनको लगता है कि रिटर्न बेहतर है तो क्या मार्केट में से विड्रॉ करता है? इनका प्रश्न ये था कि ये अगर थोड़ा इनका प्रॉफिट हो गया है तो सही समय क्या है उसे फिर से सेल करने का? ये डिपेंड करता है एक तो आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट का कितना आपका उसमें ड्यूरेशन सोचा है, आपने आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस को कैसे प्लान किया है, कब आपको जरूरत है और आप क्या अपना गोल लेकर के चल रहे हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें किस प्रॉफिट के ऊपर आप मार्केट से एग्जिट करना चाहेंगे। डेफिनेटली इट्स एन इंडिविजुअल डिसीजन। इसमें ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। थोड़ा वॉलेटिलिटी
और ये बहुत सारे लोग ऐसे में जिनको लगता है कि उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, तो वो एग्जिट करते हैं मार्केट से वोलेटिलिटी को देखते हैं। There is also an instrument SWP, that is systematic withdrawal plan. He can also, if depending on his risk appetite and also the amount or whatever his needs are, his near and far term goals, he can opt for that as well. And Harveer Singh ji, would you enlighten our listeners as to what this SWP, that is systematic withdrawal plan, is? Yes. Can you hear us? Yes. Basically, as we have this system, investors, there is two kind of things. SIP, we systematic investment plan according to our flow and income. We decide that how much you want to invest in the market in the long run. Every month it goes like that. But there is a facility that allows an investor to withdraw money from existing mutual fund because that SIP is also through mutual funds. The same thing is there at a predetermined. You can decide that when you want to withdraw from a particular fund, and it gives that opportunity to investor this systematic withdrawal plan as per his pre-decided schedule or like that. Our next caller is Gaurav from Ghaziabad. Gaurav, welcome. हेलो मार्केट मॉनिटर टीम, नमस्कार। नमस्कार गौरव सर। सर, ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्टॉक आज भी नहीं गिरे हैं, वहीं खड़े या ऊपर ही गए हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म व्यू इसके लिए ये टेम्पररी तेजी है क्योंकि यूक्रेन में जो फर्टिलाइजर सप्लायर हमारे हैं उनकी प्रॉब्लम होने से हमारे सब फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर के स्टॉक अच्छे कर रहे हैं, या फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, ये बता दीजिए। और गेहूं के दाम इस साल कैसे रहेंगे, क्योंकि ये ब्रेड बास्केट को यूक्रेन को रशिया ने रोक रखा है, तो इसका हमारे देश को क्या फायदा होगा? किसानों को कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा क्या गेहूं की खेती करने वालों को? देखिए, दोनों बातें आपकी जो इंटरनेशनल सिचुएशन जो बनी है स्थिति उसको लेकर के है कि एक तो दुनिया का करीब 20 से 22% जो मीट है वो मार्केट में आता है यूक्रेन और रशिया से, और ये दोनों देश अभी मार्केट से बाहर है। और सवाल बाहर रहने के अलावा एक ये भी है कि अभी जो अगला क्रॉप सीजन वहां पे होगा उस पर भी इसका असर पड़ता है। इसके चलते क्या हुआ है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट क्रिएट हो गया और ग्लोबल मार्केट में प्राइसिंग काफी ऊपर चली गई और हमारा भी बहुत अट्रैक्टिव है इस वक्त एक्सपोर्ट के लिए। हमने करीब 70 लाख टन का एक्सपोर्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी किया है, और इस बार अगर हमें हमारी सप्लाई अलाउ करती है तो उससे ज्यादा एक्सपोर्ट के चांसेस है और दाम भी बेहतर मिल रहा है। इसका एक इम्पैक्ट तो ये है कि जो फार्मर्स पूरी तरीके से पब्लिक प्रोक्यूरमेंट सिस्टम पे डिपेंड करते थे, अभी जब हार्वेस्टिंग चल रही है वहां पर प्राइवेट बायर है इस बार, और कई जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को जो हमारा इस बार का एमएसपी है 2015 रुपया प्रति क्विंटल, उससे ज्यादा दाम कई जगह किसानों को मिल रहा है। और उसमें हमारे जो घरेलू खरीदार है जो बिजनेस करते हैं ग्रेन का और व्हीट फ्लोर का, जो उसके प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो लोग भी खरीदारी कर रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा इस बार की स्थिति किसान के लिए बेहतर है। हालांकि कई हिस्सों में अचानक जो ये मार्च में ही टेम्परेचर काफी राइज हुआ, उसका इम्पैक्ट भी प्रोडक्शन के ऊपर प्रोडक्टिविटी पे आ रहा है, क्योंकि ग्रेन जो है वो श्रिंक हुआ है, ये स्थिति है। दूसरा आपका फर्टिलाइजर को लेकर के था, देखिए हमने 3 मानसून लगातार देखे हैं, नॉर्मल मानसून। अभी भी जो प्रेडिक्शन आया है मैट डिपार्टमेंट का, वो चौथा मानसून को भी सामान्य कह रहा है। इसका मतलब ये एग्रीकल्चर के लिए बेहतर साल रहेगा, और साल दर साल हम लोग जो उर्वरक है उनकी खपत हमारे यहाँ बढ़ रही है। हालांकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में दाम बहुत ज्यादा है और उसका असर लागत के ऊपर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये है कि जो उर्वरक कंपनियां हैं उनके लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। हमारा जो डिकंट्रोल फर्टिलाइजर है उसमें थोड़ा सब्सिडी को लेकर के गवर्नमेंट का डिसीजन अभी आगे किया है, और लेकिन लगता है कि वो कंपनसेट करेंगे। तो ऐसे में इसीलिए ये आपका मार्केट की इन चीजों को देख रहा है। पेस्टिसाइड कंजम्पशन इधर तेजी से बढ़ा है, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो पेस्टिसाइड कंपनीज हैं उनके आप टर्नओवर और प्रॉफिट्स में आपको लगातार इजाफा दिखेगा। और जाहिर सी बात है कि इस बार फिर से सामान्य मॉनसून रहेगा तो
फसल भी उसी तरीके से बुआई होगी। तो ये सब चीजें शायद लोग जो इन्वेस्टर्स रिलेट कर रहे हैं इन कंपनी के स्टॉक से। Next caller is Manav from Bengaluru. Manav, can you hear us? Yeah, good evening. Good evening, Manav. Welcome to the show. Thank you. Thanks for the opportunity. My name is Manas, M-A-N-A-S. Okay. Our apologies, Manas. Yeah, Manas from Bengaluru. No problem. I have two questions. First question is about the EPFO's heavy deduction that they did on the rate of interest for last financial year. They reduced it 40 basis points. So I wanted to understand why they did it, because as far as I know, they also invest in equity markets, and equity markets gave very handsome returns in the last financial year. So please help me understand what was the reason. And the second question is about the RBI's limit on the investment in foreign markets. The maximum cap was $7 billion as far as I know in one financial year. So why does such a cap exist in the first place, and is this going to be reset in this new financial year? Because I've been doing SIP in one of the international equity index funds, and the SIP installment for this month has not gone through. So please explain this as well. Thank you so much. हेलो। Yeah. जी हरवीर जी। जी, इनका पहला जो क्वेश्चन था वो ईपीएफओ को लेकर के था। जी जी जी। कि जो हमारा उसमें डिडक्शन होता है। जी। And I think if I understand, it was about the investment from EPFO purpose to stock market. Yeah. He was talking about the equity markets. Yes. बेसिकली देखिए, जो हमारा जो ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, जो रिडक्शन होता है फॉर द रूल 12.5% देखिए, तो उसमें जो जितना भी पैसा इकट्ठा होता है उसका रिटर्न तो हमें उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम होती है उसी से इंटरेस्ट रेट तय होता है। अब उसमें क्या है कि ये एक लिमिट है कि उसमें ऑप्शन ये भी है कि आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर। तो जो ईपीएफओ बोर्ड है वो तय करता है कि अभी तक जितना लिमिट है उतना पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं होता, क्योंकि बोर्ड का हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच रहा है। बिकॉज जो ईपीएफ का पैसा है वो जो मेंबर है उसके उनका एक तरीके से जो फ्यूचर सिक्योरिटी है उसको लेकर के है कि उनका जो एक तरीके से इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर उसको ज्यादा वे करते हैं। तो इसलिए उसमें कोई भी रिस्क के चांसेस नहीं रखते। बहुत ही सीमित जो उसका हिस्सा है वो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, क्योंकि उसमें जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वही बैठ करके मीटिंग में तय करते हैं। उसमें एम्प्लॉइज का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये फैक्टर है। And his second question was regarding the RBI limit on investment in the foreign market. I believe it's $7 billion cap at the moment, but it will be opened in near future. And this is also because the RBI ensures that the safety is of paramount concern. It's actually a safeguard. Yeah, $250,000 per year. How much? So it depends on what RBI policy, what kind of RBI policy is there, and how RBI is going to liberalize this. In fact, the name of the scheme itself lies that remittance scheme. All right. So it depends. We have to see in future as for the RBI. जी, खजुराहो से हमारे अगले कॉलर हैं जितेंद्र, जो हमसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हेलो जी नमस्ते सर। जी नमस्ते, आपका प्रश्न क्या है? सर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी जो आरबीआई की जो मीटिंग हुई है तो उसमें रिवर्स रेपो रेट की जगह जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लेके आए हैं कंसेप्ट, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? और दूसरा क्वेश्चन है कि अभी मोदी जी ने मतलब कि WTO अगर हमको अनुमति दे तो हम पूरी दुनिया में गेहूं का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्या एक लिमिट रहती है क्या एक्सपोर्ट करने की? थैंक यू। मेरे ख्याल देखिए, ये जो स्टैंडिंग जो ये है डिपॉजिट फैसिलिटी, ये तो आरबीआई उसके लिए जो भी एक्सेस सिक्योरिटी है उसको तक करने के लिए ये प्रोविजन होता है उसमें। एंड बेसिकली इट इज ऑन द रेट ऑफ दैट, ये 2.75% जो है, तो इसमें वही उसका है। उसमें तो बेसिकली बैंक पुट देयर मनी बैक टू आरबीआई। सो इफ आरबीआई थिंक्स दैट कैन गो दिस वे,
ओवरनाइट बेसिस ही यूजुअली होता है। दूसरे जो एक्सपोर्ट की बात आपने की है, तो एक्सपोर्ट अभी तो ओपन एक्सपोर्ट है, जो भी सौदे होंगे मार्केट में उसके हिसाब से एक्सपोर्ट होगा, उसमें लिमिट अभी सरकार ने तय नहीं की। Next caller is Gurunath from Thane. Gurunath, can you hear us? I think we have lost Gurunath. चलिए रुपए की बात कर लेते हैं। तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर हुआ। घरेलू मुद्रा बाजार में 76 रुपए 27 पैसे प्रति डॉलर पर रुपया आज बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला सूचकांक दिन के कारोबार में 0.1% की बढ़त से 100.6 पर था। Gurunath, can you hear us again? प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर ये 1009 डाउन मुंबई पुणे 3000 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार में सोना आज 570 रुपए की बढ़त पर रहा और ये 53,560 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं चांदी मई के वायदा कारोबार में 1,365 रुपए चढ़कर 70,395 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों की बात की जाए तो सोना बढ़त के साथ $1,995 90 सेंट प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी भी आज दिन के कारोबार में ऊपर आकर $26.30 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। वहीं एशियाई शेयर बाजारों में आज काफी गिरावट देखी गई। जापान का निक्केई 225 1.1% नीचे आ गया, जबकि सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स सूचकांक 1% की सुस्ती के साथ बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक आज 0.5% लुढ़क गया। वहीं दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.1% की गिरावट है। हांगकांग के हेंगसेंग और यूरोपीय शेयर बाजारों में आज कारोबार नहीं हुआ। हरवीर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एशियाई शेयर बाजारों में आज काफी गिरावट का रुख रहा और इसके चलते हमारे घरेलू शेयर बाजार में काफी गिरावट देखी गई। कैसे देखते हैं इस स्थिति को? नहीं, देखिए, तो मैंने जैसे पहले भी चर्चा में कहा है कि जो चीन की इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। और चाइना क्योंकि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से एक है ऊपर चीन, और उसका इम्पैक्ट आता है। ये जो यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ा है, उन्होंने नए केसेस जो बढ़े हैं वो कोरोना के चाइना में, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के ऊपर इम्पैक्ट आने का डर है। अब उससे क्या है कि उससे सिर्फ बाकी जगह भी उसका इम्प्लीकेशन आ रहा है, तो इसीलिए पूरा जो मार्केट है। दूसरे इधर जो रशिया और यूक्रेन के बीच फिर से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफी अग्रेशन आया है। इससे जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो अभी भी एक काफी अनसर्टेन हो रही है। और उसका देखिए, हमने जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है उसमें भी हम लोग उसका इंडिकेशन देख रहे हैं। तो ये अब जाहिर सी बात है कि दुनिया भर के मार्केट आपस में इंटरकनेक्टेड है उस तरीके से, और मनी फ्लो उस तरह से होता है, इंडिकेशन फ्लो लिए जाते हैं, तो इसीलिए हमारा मार्केट भी उससे छूटा नहीं रहता इस तरह के घटना पर। And moving on to some other stories, India's sugar exports has witnessed an astounding growth of 291% from $1,177 million in financial year 2013-14 to $4,600 million in the last financial year. It has exceeded 10 million tons for the first time. Ministry of Commerce and Industry said sugar export jumped 65% in the last financial year, corresponding to its previous year, despite logistical challenges posed by COVID-19 pandemic. Highlighting this historic achievement in a tweet today, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said government's policies are helping farmers increase their income by tapping global markets. The ministry further said the country had exported sugar worth $1,965 million in 2019-20, which rose to $2,790 million in 2020-21 and $4,600 million in 2021-22. Our next caller is Tarun from Dehradun. Tarun, can you hear us? Yes. Yeah, Tarun, welcome to the show. Thank you. Good evening to all. Yeah, my question is related to the currency. Just in case this ruble mechanism will work out, what will be the medium and long-term outlook for the rupee in that case? Will that actually help rupee to appreciate, or it will depreciate with respect to the dollar? And the second question is with regards to the volatility in the market. So if the geopolitical tension keeps hovering for a long time, whether this volatility will stay there or the directional move will come. Thank you.
Actually, in case of rupee-ruble trade, RBI is not basically in the Western policy view. RBI has not said anything clearly to create a mechanism for that. But industry can do movement things like that, and Russia offered that they can do trade in ruble. And it depends. Evaluation will be done as per the product or commodity which country is supplying to another country. Both of them, it will be a mutual this way, the exchange rate. And definitely, if we buy commodity in ruble, and there are few important commodities from Russia like crude oil and fertilizer and edible oil. So if we are able to do that, it definitely will be good for rupee. It will be a strengthening point for rupee because we'll buy this thing in ruble or rupee, we'll supply them or they will supply to us. There will be no intervention of dollar. There will be no requirement of dollar in that transaction. So that's why it is a positive if it goes through like that. Another point, practically the geopolitical condition is not good for the market. And if the Q4 results are good for companies who will come in the coming days with their results, if there is better indication from there, then it will support the market. Otherwise, definitely there will be a chance of volatility in the market. Well, moving on to oil. Oil prices today remained almost steady. Worries over slowing demand in China created a concern over fall in demand. On the other hand, concern over tight global supply and the deepening Ukraine crisis kept Brent crude above $112 per barrel level. In the intraday trade, Brent crude was trading around $112.10 per barrel, while the WTI crude prices were at $107.10 per barrel. Harvirji, very quickly, again, oil is spiking up. It's almost 112, more than that. How do you see this? It is not good for Indian economy. We have seen this the number today in the WTI and latest of this inflationary pressure from energy side. So this pricing ease is good for us. Otherwise, it will add some inflationary pressure on Indian economy. Do you see this spiking it any further in the near future? So actually, it will depend how particularly this conflict will go in coming days. Mm-hmm. So there is a lot of uncertainty in that. हरवीर जी, इस स्थिति में जहां पर ऑयल प्राइसेस में लगातार चेंजेस आ रहे हैं और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी चेंजेस काफी देखे जा रहे हैं, जो एफएमसीजी की जो चीजें हैं उनमें कीमतों में फर्क पड़ सकता है क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए, क्रूड का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हम लोग जो एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं वही उसका असर है, क्योंकि इसका बहुत सारा इस्तेमाल आपका जो डिटर्जेंट एंड सोप इंडस्ट्री है, बहुत सारा पैकेजिंग मटेरियल है, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है, तो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके, इवन गैस है, तो ये कई इसका काफी इम्प्लीकेशन काफी बड़े होते हैं। और जो इंडस्ट्री इनका एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है तो उसके मार्जिन पे असर आएगा, तो डेफिनेटली सेकंड पास ऑन टू द कंज्यूमर। जी हरवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। और श्रोताओं, अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू शेयर बाजार में आज 2% की गिरावट, सेंसेक्स नीचे आकर 57,200 अंक के नीचे बंद हुआ। निफ्टी लुढ़ककर 17,200 अंक के नीचे। डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे कमजोर रहा। वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट का रुख और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल पर पहुंची। Domestic stocks plunge around 2%. Sensex closes below 57,200 points. Nifty settles below 17,200. The rupee weakens 9 paise against the US dollar. Global stocks witness losses and Brent crude prices hover around $112 per barrel. That's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, goodbye till we meet again the next time. Market